हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स ट्यूट योर फ्लाइट टू सक्सेस। और आप जैसे स्क्रीन पर देख ही सकते हो, आज जो हम डिस्कशन करेंगे या सॉल्व करेंगे बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1I ऑफ द सब्जेक्ट OCM 12th कॉमर्स क्वेश्चन बैंक 2021 प्रोवाइडेड बाय द महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड चिल्ड्रन। तो आज इस वीडियो में हम I और J दोनों सॉल्व करने वाले हैं along with explanations wherever required. So without delaying much children, let's get started. But before that, new people to my channel, kindly like, subscribe and share so that people utilize the video and that will help them to score good marks. ठीक है, सबसे पहले the word entrepreneur comes from the German verb entreprendre. It means to undertake. First of all, underline जो किया है, I'll just read the question here. Correct the underline word and rewrite the sentence. ठीक है, तो जो भी underline है वो गलत है, आपको उसको replace करना है correct answer के साथ and you have to write the entire sentence children. Yes, you heard it right. सिर्फ आंसर नहीं लिखना है आपको सॉरी पूरा स्टेटमेंट रिपीट करना है करेक्ट आंसर के साथ. ठीक है, सो द वर्ड entrepreneur कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ब. यस, यू हर्ड इट राइट. फ्रेंच वर्ब entreprendre, इट मीन्स टू अंडरटेक. ठीक है, आई एम रीडिंग द फर्स्ट, मतलब उनका जो स्टेटमेंट है वो पहले पढ़ती हूँ मैं एंड देन आई रीड इट आउट विद द राइट आंसर. एज यू कैन सी द राइट आंसर ऑन द स्क्रीन बट स्टिल आई जस्ट रीड इट आउट फॉर यू. ठीक है, सेकेंड आता है द कमर्शियल बैंक इज द एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन बैंकिंग इंडस्ट्री इन द कंट्री. बिल्कुल भी नहीं. द करेक्ट आंसर इज यस, सेंट्रल बैंक चिल्ड्रन. द सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन बैंकिंग इंडस्ट्री इन द कंट्री. प्लास्टिक करेंसी इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करेंसी दैट एग्जिस्ट ओनली इन साइबर स्पेस. बिल्कुल गलत. The correct answer is digital cash is a form of electronic currency that exists only in cyber space. Fourth है the person who is protected against certain losses is known as insurer. नहीं children, insurer तो company है ना. The one who gets protected is insured. So the correct answer is insured here. Fourth point पढ़ रही हूँ मैं. Then the loan, fifth one, the loan taken under Stand Up India scheme is repayable in 10 years. No. The loan taken under Stand Up India scheme is repayable in 7 years. ठीक है. Then comes your sixth one. Controlling measures are rigid to some extent. बिल्कुल नहीं. Controlling measures are flexible. We are able to change it. Flexibility होती है to some extent. ठीक है. Sixth हो चुका है. Let's go to the seventh one. LPO is a sub segment of BPO. नहीं. KPO, that is knowledge processing outsourcing, is a sub-segment of BPO. Eighth, social responsibility is narrower term than legal responsibility of business. नहीं, social responsibility is a broader term than legal responsibility of business. Ninth point, all sorts of फेयर प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू स्टॉक एक्सचेंज शुड बी अवॉइडेड. ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता. फेयर प्रैक्टिस तो फॉलो करनी चाहिए ना. ऑल सॉर्ट्स ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस जो होते हैं रिलेटेड टू स्टॉक एक्सचेंज शुड बी अवॉइडेड. टेंथ, एस्प्रिट दे कॉप्स मीन्स डिविजन इज स्ट्रेंथ. नो, एस्प्रिट दे कॉप्स मीन्स यूनियन इज स्ट्रेंथ स्टूडेंट्स. ठीक है, 11th की तरफ चलते हैं. Every year 15th March is observed as a National Consumer Rights Day. No, every year 15th March is observed as a World's Consumer Rights Day. 12th, the President of District Commission is sitting or retired High Court judge. नहीं, the President of District Commission is sitting or retired District Court judge. Okay, then 13th one, factors of business environment are always fixed. No, factors of business environment are always changing. 14th, territorial jurisdiction of state commission is geographical limits of the nation. बिल्कुल भी नहीं. Territorial jurisdiction of state commission is a geographical limits of the state. In exchange, 15th one, in exchange concept of market emphasis is given on buying and selling of goods and services. बिल्कुल भी नहीं. In commodity concept
ऑफ मार्केट में एम्फोसिस दिया जाता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। 16th इन द लास्ट वन, सिक्योरिटी इन जॉब ऑलवेज अफेक्ट्स एडवर्सली ऑन द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज। बिल्कुल नहीं, अगर जॉब सिक्योर है तो फिर क्यों उन पर इफेक्ट आएगा, उनकी एफिशिएंसी पर क्यों इम्पैक्ट होगा एडवर्सली। इनसिक्योरिटी इन जॉब जो होता है वो अफेक्ट करता है उनके एफिशिएंसी को, है ना। सो दिस इज अबाउट कंप्लीट द सेंटेंस हियर। ओके, लेट्स गो टू द जे पार्ट ऑफ इट चिल्ड्रन। अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई लेट यू नो दैट फर्स्ट वन जैसे इन्होंने दिया है कंट्रोलिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मैंने नंबर डाले हुए हैं नीचे कि पहले कौन सा आता है, फिर कौन सा एंड तीसरा कौन सा। सो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू टेल यू। तो जो भी नंबर्स मैंने नीचे डाले, जैसे इन दिस केस सी, आई जस्ट रीड आउट द फर्स्ट वन फॉर यू। कंट्रोलिंग है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, वो प्रॉपर ऑर्डर में तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक प्रॉपर ऑर्डर और सीक्वेंस में फिर से लिखना है स्टूडेंट्स। मैंने यहाँ सिर्फ नंबरिंग डाला हुआ है, एग्जाम में आप वहाँ पर नंबर डाल के प्लीज़ मत छोड़ देना। यू हैव टू राइट, आई जस्ट गिव यू वन डेमो हियर, ओके, सो दैट आई जस्ट शो यू, you have to write in the exams this way. Okay, 1 minute. So जैसे कि आप देख सकते हो मैंने नंबर 1 डाला है प्लानिंग, तो यहाँ पर मैं लिखूँगी फर्स्ट प्लानिंग, ओके। देन सेकंड आता है ऑर्गेनाइजिंग, सो मैं लिखूँगी ऑर्गेनाइजिंग। एंड लास्ट में आता है कंट्रोलिंग, सो आई हैव टू राइट कंट्रोलिंग, ओके। दिस इज़ द वे चिल्ड्रन यू हैव टू राइट इन द एग्ज़ाम्स। सिर्फ नंबर डाल के प्लीज़ मत छोड़ देना, आपके लिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है, ओके, फॉर योर रेफरेंस। सो ऐसे ही सबके लिए आपको करना है, फिर मैं अभी नंबर के साथ आपको एक्सप्लेन करूँगी। सो इन दिस केस यहाँ पर दिया है कंट्रोलिंग, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। सबसे पहले आता है प्लानिंग, सो आई हैव रिटन प्लानिंग। सेकेंड है ऑर्गेनाइजिंग एंड थर्ड इज़ कंट्रोलिंग, ओके। लाइकवाइज यहाँ पर दिया है क्लेम एक्सीडेंट टेकिंग द पॉलिसी कॉम्पनसेशन। वैसे एक्सीडेंट करने के बाद तो कोई पॉलिसी नहीं लेगा, तो सबसे पहले इंसान क्या करेगा, ही विल टेक द पॉलिसी। सो नंबर 1 पे है टेकिंग द पॉलिसी। देन सेकेंड, अगर उसका एक्सीडेंट होता है, सो सेकेंड विल कम एक्सीडेंट, देन ही विल क्लेम टू द इंश्योरेंस कंपनी, थर्ड पॉइंट, एंड फोर्थ में उसको कॉम्पनसेशन पे किया जाएगा। सो फर्स्ट इज टेकिंग द पॉलिसी, सेकेंड इज एक्सीडेंट, थर्ड इज क्लेम, फोर्थ इज कॉम्पनसेशन, ठीक है। देन थर्ड इज सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज। सबसे पहले आता है डिस्ट्रिक्ट जज नंबर 1 पे, 2 इज हाई कोर्ट जज एंड थर्ड is Supreme Court judge. So number 1 is district, as I'll say again, 2 is High Court judge and 3 is Supreme Court judge. Fourth, registration, cash on delivery, placing an order. Obviously पहले तो आपको registration करना पड़ता है, so number 1 पे आएगा registration. Number 2 you have to place an order, that is placing an order, and last में आएगा cash on delivery. So it's 1 is registration, I'm reading out again for your अंडरस्टैंडिंग इन डिटेल। नंबर 2 पे प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड नंबर 3 पे कैश ऑन डिलीवरी। फिफ्थ इज कोऑर्डिनेटिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। सबसे पहले आता है स्टाफिंग, जिसमें रिक्रूटमेंट भी आता है, बहुत सारी चीज़ें आती है। सो फर्स्ट इज स्टाफिंग, फिर डायरेक्ट किया जाता है लोगों को, एम्प्लॉयज़ को। सो सेकेंड इज डायरेक्टिंग एंड सबसे थर्ड अंत में आता है कोऑर्डिनेटिंग। सो इट इज़ number 1 staffing, number 2 directing and number 3 coordinating. So this is how you have to arrange in the proper order. Children, मैं और एक बार बता दूँ आपको सिर्फ नंबर नहीं लिखना है, यहाँ पर मैंने फर्स्ट वाला किया है, वैसे आपको सारे फिर से लिखने हैं, उनको अरेंज करके in the proper order. So that's it children in this video. I hope this video again will help you to solve this exercise, okay, along with a good glance, so that you can see, understand and then revise as well. So continue studying children, relax, take care. Very soon I'll be coming with the next video which will really again help you in your studies. Till then, take care children. Thank you so much.